Hello everyone, my name is Shruti Jain and I'm your faculty of international marketing. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So in the previous lecture we have discussed how it is very important for a marketer to do its marketing selection. So in this lecture we will go discuss how it is very important for a marketer to do its international marketing research. Basically, if I'm talking about research, there is nothing difference between international marketing research and a domestic research. But you need to understand that if I'm talking about at international level, there is a huge difference between, because here the environment is completely different. Here the people and the culture is completely different. So we need to keep that point in our mind if we are starting our business at international level. So first of all, in this lecture we will be covering what is the definition of international marketing research and why it is important for a marketer to do international marketing research, and why international marketing research is different from your domestic research, which is conducted by the your research analyst. So in the next slide we will be covering the definition of your international marketing research. So basically, international marketing research, it is a systematic. First of all, we should know the each and every word of what is written in this slides. So if we are talking about any research, it is a systematic collection recording. First of all, I will collect the data, then record that data and analyze that data and interrupt and then report that data. First of all, if I am a researcher, I will collect the data, then उसको record करते हैं हम, उसको record करने के बाद analyze किया जाता है, then we interpret our data and record the information pertaining to a particular marketing decision facing a company operating internationally. If I am talking about any company, first of all they will collect our data, then record that data in the required documents, then analyze the data, then interrupt the data, and then finally report that in their marketing report or anything else. Then they, in the final step, they will report the data and analyze the result on the basis of your marketing research done by your analyst. So why it is important? International marketing managers need to constantly monitor the different forces affecting the international operations. So they will have to, because the environment which the business operate is continuously changing. It is not a constant environment, it's a very dynamic environment, and it's keep on changing on day by day and from months to months. So if a marketer have to be updated, they need to do a marketing research. What are the preferences of the customers and they need to be updated if they want to be survive in this environment. So managers need to constantly update themselves. That's why they need to do international marketing research, because the environment in which they operate is very complex in nature. So what is the, now we will discuss international marketing research, how it is different from your domestic research. The tools and techniques in international research are mostly the same which is used in domestic market, but the only difference is that if we are doing your international marketing research, the environment is completely different, because the political environment is completely different, the culture is completely different. So here the only difference is that the environment is completely different when we are talking about international marketing research. So how it is different from your domestic research? First, it is your new parameters. If I am talking about any research or international research, as compared to your domestic research, there is a new parameters. Obviously the market, if I am an Indian marketer and I am doing my business in India only, so it is very narrow market for me. And if I am that business in another country, that there will be a new parameters which help me to learn the new way of doing the business. New environment factors होते हैं, a broader definition of competition. Obviously if I am doing a business at international level, then I will be facing a competition at international level also. So there will be a competitor from every areas and international research.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट्स कवर व्हाट इज न्यू पैरामीटर्स। न्यू पैरामीटर्स में क्या क्या होता है आपका, इन क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स अ फर्म इनकाउंटर्स पैरामीटर्स कंस्ट्रेंट्स नॉट फाउंड इन डोमेस्टिक कंट्रीज। ऑब्वियसली जो पैरामीटर्स मेरी कंट्री में होंगे वो दूसरी कंट्री में हो ही नहीं सकते। लाइक इफ़ आई एम अ कम्प्लीटली वेजिटेरियन और इफ़ आई फॉलो अ certain religion in India, then it cannot be possible that every foreigners will follow that same regime or same culture which other usually the Indians follow. So everyone have a different parameters. So like it includes your duties, like हमारे एक्सपोर्ट पॉलिसी अलग से हो सकती है, एग्जीम ड्यूटीज़ अलग से हो सकती हैं, फॉरेन करेंसीज एंड चेंजिंग इन देयर वैल्यूज़ की फॉरेन करेंसी लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया को कंपेयर किया जाता है डॉलर से तो वहाँ पे करेंसी रेट अलग चल रहा है, इफ़ दूसरी कंट्री से कंपेयर करेंगे वहाँ का करेंसी रेट अलग हो जाएगा। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लाइक इंडिया में अगर हमारा किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, दूसरी कंट्री में लैंड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सकता है आपका, यहाँ पे वाटर बेस से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सकता है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन अलग होते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस हो सकता है आपका। नाउ न्यू एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह हम बात करते हैं, मैनी डोमेस्टिक कंजम्पशंस ऑन विच द फर्म इज़ एक्टिवली, लाइक अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया की कोई कंपनी है पतंजलि अगर हमारे यहाँ काम कर रही है, सो उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अगर हम यही फ़ॉरेन में की बात करते हैं, फ़ॉरेन का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। फ़ॉरेन की जो कंपनीज है दे नीड टू फॉलो सर्टेन अलग प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, बट इंडिया की कंपनी को अलग प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। सो वही आ जाते हैं, लाइक उनको कल्चर के लिए अलग पता करना पड़ेगा, होस्ट कंट्री का कल्चर क्या है। लाइक अगर वो चाइना में ऑपरेट कर रही है तो उस कंट्री को प्रॉपर चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे क्या चल रहा है, लाइक वहाँ पे पूरी सोशलिस्ट इकनॉमी है, सो दे शुड नो कि क्या क्या सोशलिस्ट इकनॉमी के प्रोज हैं, क्या कौन है, क्या वहाँ पे रूल चलते हैं, एंड देन दे हैव टू फॉलो दैट। सो यहाँ पे अंडरस्टैंड द लीगल इशूज़ पूरे के पूरे इशू करने पड़ते हैं। ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, इट्स वेरी कॉमन दैट IIM will be facing a competition at a large level। अगर मैं एक इंडियन मार्केटर हूँ और मैं यूएस में जाके अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ, सो खाली यूएस के लोगों से मुझे कंपटीशन नहीं फेस करना, मुझे अपने वहाँ पे और इंडिया के लोग भी मार्केट करना चाह रहे होंगे, और इंडिया के लोग भी काम कर रहे होंगे, और चाइना के लोग भी काम कर रहे होंगे, जापान के लोग भी। सो वो I will be facing a competition at a broader level. So international market exposed to a firm to much great variety of competition that देन द फाउंडेड होम मार्केट। जो हमारे कंपटीशन होता है होम मार्केट से बहुत वाइड कंपटीशन फेस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सैचुरेटेड मार्केट है या नहीं। लाइक सैचुरेटेड मार्केट मतलब बहुत सारा कंपटीशन ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है वहाँ पे। ट्रैक द कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज़ क्या क्या है, इवैल्यूएट द एक्चुअल पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी का आपका बाहर जाके अगर वो बिजनेस करना स्टार्ट करेगी आपका। सो लैक ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च क्या होता है, यूजुअली जो मैनेजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं कि बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च करने से। वो बहुत हार्ड नहीं होती, बट क्या होता है उनके अंदर फोबिया होता है, एक तो कि अगर मुझे बाहर से आना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट लैंग्वेज में डील करना पड़ेगा, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट लैंग्वेज, या मेरे को ज़्यादा रिसोर्सेज यूजुअली लोग होते हैं अपने कम्फर्ट जोन से नहीं बाहर जाना चाहते। सो वही है लैक ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च। यहाँ पे लोगों के पास लैक इन्फॉर्मेशन होती है, देयर इज लैक ऑफ सेंसिटिविटी, डिफरेंस इन कल्चर होता है। लाइक अगर मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो पंक्चुअल हो। सो वो ही आ जाता है कि कल्चर का डिफरेंस है, वे ऑफ डूइंग द बिजनेस अलग होता है, लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, लैक ऑफ फेमिलैरिटी विद डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल सोर्सेज के हिसाब से हमारा आ जाएगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च। क्यों क्यों आपकी नेशनल इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई यू शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इंटरनेशनल रिसर्च।
ऑब्वियसली अगर मैं एक इंडियन मार्केट हूँ, लेकिन एग्जांपल लेते हैं हम जियो का। जब जियो कंपनी आई थी तो मुकेश अंबानी जी ने क्या करा, सब पूरा उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, अब इंडिया का मार्केट उनके लिए सेचुरेटेड मार्केट हो गया। इससे ज़्यादा तो नहीं वो बेच पाएंगे ना, इतना जितना था उन्होंने बेच लिया। बट अब क्या आता है, उन्होंने क्या करा, एक नया मार्केट ऐसा देखा जो उनके लिए न्यू मार्केट होगा। सो उन्होंने अपना अफ्रीका में जाके प्लांट सिचुएट कर लिया। तो उनके लिए जो यहाँ पे सिचुएटेड मार्केट था इंडिया, वो उनके लिए अफ्रीका क्या हो गया, न्यू मार्केट हो गया। सो उन्होंने क्या करा, अब सबसे पहले क्या करा, मार्केटिंग रिसर्च करी, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च करी कि क्या उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सो इसमें आएगा फर्म मस्ट लर्न वेयर द कॉम्पिटिशन्स आर, एंड कहाँ पे कॉम्पिटिशन है, हु आर द एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़, क्या उनके लिए एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ होगी। देखो उन्होंने, मुकेश अंबानी ने क्या करा, सबसे पहले देख लिया कि कहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कस्टमर्स की क्या वांट है, व्हाई दे वांट इट, अगर वो चाहते हैं तो क्यों ये चीज़ चाह रहे हैं, एंड हाउ कंपनी उसको सेटिस्फाई कर सकती है। अलाउ करेगी मैनेजमेंट को टू डेवलप द इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज। सो फिर क्या करना है, उनकी नीड्स देख ली, उनकी वांट्स से देख ली, उसके बाद क्या करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है उनकी वांट्स के लेके। अब अगर कोई भी एमएनसी होगी, अगर कोई भी बहुत इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी, सो उन्होंने क्या करा, इंडिया की नीड्स देख ली, इंडिया की क्या इस टाइम करंटली इंडिया की नीड्स क्या है, उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए या कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि जो उनको उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे। तो सारी कंपनी ने क्या करा, कंपनी इंडिया की वांट देख ली, सबसे पहले इंडिया का एनवायरनमेंट देखा, इंडिया के ऊपर रिसर्च करी, इंडिया उन्होंने देखा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कि उनका एक सप्लीमेंट लॉन्च करने की, कि लोग उसको ग्रैब करें और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। सो उन्होंने रिसर्च करी और फिर उसी तरह से अपनी प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करा और उसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी स्टार्ट कर दी। फर्म मस्ट आइडेंटिफाई वैलिड एंड compare the potential जो foreign business opportunities and subsequent target selection। सो उनको क्या करना है, सबसे पहले सारा कुछ उनके लिए मार्केट नहीं होगा, उनको सिलेक्ट करना है जो उनका पोटेंशियल मार्केट होगा, उसको सिलेक्ट करना है, देन उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना है। रिसर्च इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। सो उनको एक बिजनेस प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है। सो इफ़ यू सो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट कि आपकी इंटरनेशनल रिसर्च होती क्या है। सो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च और जो डोमेस्टिक रिसर्च है ऑलमोस्ट बहुत सेम होती है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि डोमेस्टिक पे जब हम रिसर्च करी जाती है तो छोटा एरिया पे रिसर्च करी जाती है, पर्टिकुलर एक मार्केट पे रिसर्च करी जाती है। बट जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वो बहुत ब्रॉडर एरिया की बात करते हैं, हम डिफरेंट पैरामीटर की बात करते हैं, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग की बात करते हैं। सो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपका पैसा सेव कर रहा है कि आपको क्या नहीं चूज़ करना, आपको बता रहा है आपको क्या चूज़ करना है। So this is all about your international marketing research introduction. In the next lecture, we will be covering your domain of international marketing research. If you have any doubt regarding that international marketing research, please do let me know in your Zoom session so that we can discuss there. And if you have any suggestion regarding my teaching way or way of teaching, you can please provide your valuable feedback. Thank you.